In this video, we will be doing the low level design for LRU cache. Okay, and one more thing. So I am creating this video in a way that it covers all the possible improvements that can be asked in a machine coding round. So generally what happens when we create an initial draft of our code, we are asked to do some more improvements like okay, it should be extensible, let's support this, let's support that. We will be covering all of them, and if you complete this video, any kind of LLD for cache, that can be solved by you. So let's deep dive into the requirements. So let's just read out the question first. क्या बोलता है वो? It says design and implement an in-memory cache that stores key value pairs and supports least recently used eviction when the cache reaches its maximum capacity. So सबसे पहले क्या है? It says that we have to create a in-memory cache, and this is what will happen in interview also. They will not ask you to support DBs and all, but they will ask you to use some data structure to store the data for your cache. तो हमको in memory बनाना है, मतलब कोई data structure use करना है. Then एक और जो important है यहाँ पे वो है using this LRU eviction strategy. Correct. So that means कि when the cache reaches its maximum capacity, if the cache is full, तो उसके बाद अगर हम लोग अगला की ऐड करें, it should for removing the in order to create space, right, for the new key, it has to remove some existing key, some existing data. So वो data कैसे choose होता है जिसको हमको remove करना है? So that is your eviction policy, and the policy we have to use is least recently used. उसका मतलब होता है the oldest entry that was used, right? Let's remove that. ये है ask in the question. Let's see what else our requirements say. If you remember in the how to approach LLD video, the first thing is we figure out requirements, then we figure out how the things work, like LRU कैसे काम करता है, कैशे कैसे काम करता है, and the third one is the structuring and the designing. Okay, so सबसे पहला part requirements, we are understanding that now. So we need get, you need to expose a get API. ठीक है, एक get method हमको देना पड़ेगा जो कि कुछ key लेगा. देन एक वी हैव टू एक्सपोज वन मोर मेथड जो कि है पुट, जिसमें हम लोग की और वैल्यू बेसिकली जो भी पेयर हमको स्टोर करना है, राइट. सो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दैट वी हैव टू प्रोवाइड दिस मेथड. सो आई थिंक ओनली टू मेथड्स आर रिक्वेस्टेड. सो दीज आर आवर एक्सपोज्ड एपीआईज, ओके, और मेथड्स. ये क्लियर हो गया हम लोग को. देन इट शुड बी इन मेमोरी, वी हैव डिस्कस्ड. इट शुड बी हैव कैपेसिटी, कूल. Then what else? Use LRU strategy for eviction. Yeah, and after that we have generic key and value and thread safe. So generic key और value का मतलब ये है कि generally interview setting में आप direct generics use नहीं कर पाएंगे. You have to, for यहाँ पे generic का मतलब ये है कि ये जो key और value है, right, this key and value. मैं example बताता हूँ. जैसे imagine you are putting this, put 1 comma एप्पल, सिंपल एग्जांपल. सो ये होता है की, ये होता है वैल्यू, एंड द डेटा टाइप, राइट नाउ द डेटा टाइप इज स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, राइट. सो कीज आर ऑल्सो स्ट्रिंग, वैल्यूज आर ऑल्सो स्ट्रिंग. तो इनिशियली हम लोग भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला ही बनाएंगे, एंड इवन इन इंटरव्यूज यू कैन गो अहेड विद स्ट्रिंग स्ट्रिंग और इंट इंट और एनी नॉर्मल सिंगल डेटा टाइप, यू कैन यूज दैट. But in this video, after we are done with that, we will also create a generic one जहाँ पे we don't hard code it by saying कि string string लेगा. It can take any value, any type of value. आप कुछ भी भेजो, it will accept. But that will be an advancement. We will do that once we are done with the normal implementation. Oh, cool. The last part is thread safe. ये भी आजकल these things are also asked. After you done with the implementation, they will ask you, is this code thread safe? And it will be not, because हम लोगों ने वैसा implement नहीं किया, and then we have to convert it into in a way that it can be used in a multi-threaded environment. ठीक है, ये भी will learn here, don't worry. So yeah, this is the requirement. uh, cool. Let's just see how let's move to the second part, which is how this cache works and how LRU works. Okay, so let's take an example. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ how it works. ये हमारा सेकेंड पार्ट होता है, राइट. सो लेट मी पुट सम वैल्यूज. आई विल से पुट 1 comma apple, put 2 comma ball, put 3 comma
then let's just say cat. Okay, and let's assume कि हमारी जो capacity है for our cache is 3. So as soon as capacity 3 हो जाए, the cache will be full. ठीक है. So right now we have put these three entries right in the cache, and it might be storing something like this, like for example इस टाइप का कुछ टेबल ये शायद यूज कर रहा होगा, एंड फॉर 1 it is storing apple, for 2 it is storing ball, for 3 it is storing cat. Now suppose you come and you try to add one more element, and you will say for the fourth key we are using, we want to add this. Now problem here is कि the size, यहाँ पे क्या हो गया, cache is already full. So हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, we have to accommodate space, so we have to remove some key. So ये जो क्या करना पड़ेगा, remove some key. यहाँ पे जो strategy हमको use करना है to find out which of these key it needs to be removed, it is what? It is LRU. LRU means least recently used. इसका मतलब होता है least recently used का कि what is the oldest key that was used, उसको remove कर दो. In time, ये वैसे in time की बात है कि टाइम में जो सबसे पहले यूज हुआ हो, बहुत पहले, उसको रिमूव कर दो. तो अब यूसेजेस का मतलब क्या है? यूसेज का मतलब होता है, यूसेज बेसिकली मीन्स पुट और गेट. मतलब इफ यू यूज गेट और पुट ऑन एनी ऑफ द की, जैसे आप पुट कर रहे हो राइट 1 पे, मतलब 1 यूज हो गया, देन यू यूज पुट ऑन 2, सो 2 यूज हो गया. बट इवन इफ यू आर यूजिंग गेट राइट, इफ यू आर लेट्स से इफ यू डिड गेट 1, दैट ऑल्सो मीन्स कि आपने 1 यूज कर लिया. ठीक है, तो हमको ऐसा की रिमूव करना है जो कि सबसे लास्ट में यूज हुआ हो. तो इमेजिन दिस वाज आवर सिनेरियो. तो सबसे पहले क्या करा हमने, पुट 1, फिर 2, 3, 4. अगर हम इसका यूसेज ऑर्डर लिखें तो द यूसेज ऑर्डर वुड बी समथिंग लाइक दिस. सो इन फर्स्ट वी यूज्ड 1, then we use 2, then we use 3, and after this the cache is full. Till this point cache becomes full. Now we said put 4 and dog. So इससे क्या हुआ, what we did here, we went to see what was the last key that was used in time, and when we realize this was the oldest, right? This was the oldest key that was used. This was the most recent, this is the most oldest, correct? So we'll remove this key. तो इसको remove कर देंगे and we will add 4 here. Now tell me at this point of time what is the oldest. So if we have to put a fifth element or with something with the key 5, then which one we will have to remove? We will remove 2. Okay, so this is how LRU is supposed to work. Now just one more examples. What if our access order looked something like this, 2, 3 and 5. Now after this what happens, suddenly you used get 3. अब 3 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, सो इसको कैसे करें? तो इवन फॉर द कीज दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इफ यू हैव यूज्ड अगेन, you have to remove it from the existing list and you have to put it here. So what we'll do, we'll remove 3 from here and then we will put in front of this, because what is the most recent key that was used, it is 3. और जो सबसे recently used हुआ है, जो just अभी use हुआ है, वो हमेशा कहाँ पे होना चाहिए? It should be at the tail. So this is tail and this is head. So this is how LRU works. Now we'll go back to the LLD and start the coding. Okay, I hope my ID is visible and let's just start. So सबसे पहले, if you can see that I have created a class cache. इतना तो हमको चाहिए होगा, right? And if you remember, we wanted to support get and put. So क्या होगा यहाँ पे, we'll have to, let's create a method. जैसा requirement में लिखा था वैसा हम बस लिख देते हैं. Public void put, एक पुट मेथड था, एक गेट मेथड. सबसे पहले एक काम करते हैं, गेट लिखते हैं, स्ट्रिंग गेट. अंदर क्या लेगा? की लेगा. इम्प्लीमेंटेशन अभी भूल जाओ, अभी विल जस्ट रिटर्न एम्प्टी. अभी हम लोग कुछ और कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद एक और क्या मेथड चाहिए था उसको मेथड चाहिए था पुट का. वॉइड पुट क्या लेगा? वो की लेगा और वैल्यू लेगा, की स्ट्रिंग वैल्यू. ओके, डन. ये हम लोगों ने
मेथड्स एक्सपोज कर दिए और हमारा कैशे का स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप का दिखेगा। यही आज था राइट कि हमको कुछ कैशे बनाना है जो कि गेट एक्सपोज करेगा एपीआई और पुट एपीआई एक्सपोज करेगा। एपीआई मतलब यहाँ पे मेथड्स हो गए, ठीक है। तो हम लोगों ने ये तो कर लिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन वाज कि वी वांट टू यूज एन इन मेमरी कैशे एंड LRU कैशे। अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, लेट्स थिंक अबाउट दिस। सो सबसे पहले what data structure we can use to store in memory. Now if you see in the whiteboard also, we used a table kind of structure, right, that has key and values. So the only data structure that allows us to store key and values is a map, and it is present in almost every language, right? So one of the most popular implementations in Java is what is hash map. So we'll use map for this. हम लोगों ने ये फिगर आउट कर लिया कि हम लोग मैप में रखेंगे। क्यों? क्योंकि मैप सपोर्ट करता है राइट की एंड वैल्यूज। हम लोग ऐसे ही करते हैं राइट, मैप डॉट पुट सम की एंड सम वैल्यू। सो हम लोग मेमोरी के लिए यूज कर लेंगे मैप। ये हमारा डन हो गया। LRU विल फिगर आउट। बट यहाँ पे क्या हुआ, दिस पर्टिकुलर LLD इज अ कॉमन LLD राइट, एंड वी न्यू कि कैसे हमको करना था। हम यहाँ पे मैप यूज कर लेंगे, हमको थोड़ा बहुत आइडिया भी है कैसे करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट विल हैपन, वी विल नॉट नो हाउ something works and we have to create an LLD for it. So how to approach that, and we'll learn this in this example itself. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, you create the required interfaces, you don't implement them and you just use those interfaces in your code. मतलब यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो if you see if you go back to the requirement again, let me switch and see show you this. यहाँ रिक्वायरमेंट अगर देखो तो हम लोगों को लिखा था कि एक तो इन मेमोरी यूज़ करना है और LRU यूज़ करना है। अब क्या होता है जनरली इंटरव्यूज़ में कि आफ्टर यू आर डन विद दैट राइट, दे विल आस्क यू कि अब एक काम करो, हमको LRU नहीं यूज़ करना, अब हमको यहाँ पे FIFO यूज़ करना है, या मेमोरी की जगह अब हमको इन मेमोरी की जगह हमको DB यूज़ करना है, डू द चेंजेस। और वहाँ पे क्या होगा, बिकॉज आपने इतना हार्ड कोडेड लिखा है कि इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट वी विल डू इज़ कि हमारा जो इन मेमोरी वाला पार्ट है राइट, वन सेकेंड, हमारा जो इन मेमोरी वाला जो पार्ट है उसको भी हम लोग एक्सटेंसिबल बनाएंगे, और इवन जो स्ट्रैटेजी है उसको भी एक्सटेंसिबल बनाएंगे, सच दैट कि अगर हमको कोई भी नया बनाना पड़े हमसे इजीली हो जाए। ठीक है, तो एक्सटेंसिबल कैसे कर सकते हैं? एक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि बाद में कोई और इम्प्लीमेंटेशन यूज कर लें तो भी चलेगा, है ना। तो सिंपल है राइट, इफ यू हैव टू डू दीज थिंग्स एंड इफ यू हैव टू मेक लूज कपलिंग और दूसरे इंप्लीमेंटेशन यूज करना है, इफ यू रिमेंबर व्हाट वी यूज्ड टू डू, वी यूज्ड टू क्रिएट इंटरफेसेस। तो हम लोग भी यही करेंगे कि वी विल, if I go back to the ID again, is that we'll create interfaces for something that does the storage, and the other thing is that does the eviction. इतना तो हमको क्लियर हो गया राइट। इसके दो काम है। जो कैशे के पास क्या क्या चाहिए उसको, अभी कैशे को चाहिए समथिंग फॉर स्टोरेज एंड समथिंग टू हैंडल इविक्शन। ठीक है, ये दो चीज इसको चाहिए, इस चीज का इसको डिपेंडेंसी चाहिए। बट हम क्या है, डिपेंडेंसी को फिक्स नहीं करना चाहते। वी डोंट वांट टू ऑलवेज यूज इन मेमोरी और वी डोंट वांट टू ऑलवेज यूज LRU। अब लॉजिक समझ रहा राइट कि इस क्लास को किस चीज की डिपेंडेंसी थी, बट हमको वो डिपेंडेंसी को फिक्स नहीं करना है। और जब भी हमको चीजें फिक्स नहीं करनी रहती, कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन नहीं देना रहता है, व्हाट विल डू, इफ यू रिमेंबर ऑल द प्रिंसिपल्स वी लर्न लाइक डिपेंडेंसी इन्वर्जन, व्हाट वाज इट, इट वाज यूजिंग इंटरफेसेस। करेक्ट। सो वील क्रिएट इंटरफेसेस फॉर दीज टू ऑपरेशंस, ये जो स्टोरेज के लिए और इविक्शन हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ना इंटरफेस बनाते हैं अभी, डोंट वरी, बस फॉलो करो, क्लियर हो जाएगा। मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ, इंटरफेस स्टोरेज, या और अच्छा काम करते हैं, स्टोरेज थोड़ा सा जेनरिक हो जा रहा है, विल से कैशे स्टोरेज, दिस इज अ बेटर नेम। और कैशे स्टोरेज क्या करेगा, कैशे स्टोरेज इज आवर इंटरफेस जो हमको चीजें स्टोर करने का मेथड्स हमको देगा। और ये जो कैशे है, ये जो बाहरी क्लास है राइट, ये जो क्लाइंट है वो यूज करेगा इस स्टोरेज को। तो आप बताओ क्या क्या मेथड होना चाहिए स्टोरेज वाले के पास। स्टोरेज में क्या क्या होना चाहिए, स्टोरेज में सबसे पहले होना चाहिए गेट करने का, तो विल से स्ट्रिंग गेट राइट, एक मेथड तो गेट कर लिया। अब पुट करने का भी चाहिए ना कि स्टोरेज में रखना है, तो एक वॉइड पुट डाल देते हैं। क्या क्या लेगा वो, वही स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग वैल्यू, करेक्ट।
स्टोरेज और क्या सपोर्ट करता है, आपको ध्यान है कि अगर जब हम लोग कभी भी इविक्ट करेंगे, कोई की को रिमूव करेंगे, तो हमको कैशे से भी तो रिमूव करना है, टेबल से भी तो रिमूव करना है। तो अगर हम लोग ये स्टोरेज यूज कर रहे हैं तो हाँ, इसको भी एक मेथड देना पड़ेगा राइट, जिससे हम लोग वो पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव करें। तो विल से वॉइड रिमूव, हमको रिमूव भी देना पड़ेगा। नाउ देर इज वन मोर थिंग, आप बताओ स्टोरेज को और क्या हमको बताना पड़ेगा। एक और मेथड है दैट इज रिक्वायर्ड, एंड दैट इज कैपेसिटी। मतलब कैश, ये स्टोरेज को बताना भी पड़ेगा राइट कि हाँ अब फुल हो गया है, अब मुझसे आप रिमूव कराओ कोई पर्टिकुलर की। सो वो कैसे पता चलेगा कि कैशे फुल है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग एक बूलियन मेथड एक्सपोज करेंगे जो बोलेगा इज फुल। करेक्ट। तो इस फुल, जो भी आपका इम्प्लीमेंटेशन है, इन मेमोरी हो, डेटाबेस हो, कुछ भी हो, वो इस फुल को मेथड इंप्लीमेंट करेगा। और अगर कैशे फुल हो चुका होगा, ये स्टोरेज फुल हो गया होगा, तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ये हमने तोड़ दिया राइट, वी हैव क्रिएटेड अ कैशे स्टोरेज। इसको हमारा कोई इन मेमोरी वाला इंप्लीमेंट कर देगा। अभी हमको कोई इंप्लीमेंट नहीं करना, दैट इज द मेन आइडिया। वी डोंट हैव टू गो टू द इम्प्लीमेंटेशन, यू जस्ट क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट। हमने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया फॉर स्टोरेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, टेल मी व्हाट विल हैपन, वी विल यूज दिस इंटरफेस, विल से प्राइवेट स्टोरेज, सॉरी प्राइवेट कैशे स्टोरेज, स्टोरेज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे गेट करने के लिए क्या करेंगे, आप बताओ, सिंपल सा क्या करोगे आप, भाई स्टोरेज से गेट कर लोगे। कैसे गेट हो रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, इंटरनल डिटेल्स हमको भी नहीं मतलब, हम क्योंकि वी हैव टू कोड फॉर इंटरफेसेस एंड नॉट फॉर कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है। तो आई विल राइट द कोड, डोंट वरी। बट सबसे पहले हम लोगों ने एक स्टोरेज का काम कर लिया। एक काम करते हैं, इसका यूज भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, सबसे पहले गेट बताओ, गेट कैसे होगा, सिंपल होगा, दिस डॉट, जो हमारे पास स्टोरेज है, स्टोरेज डॉट, अच्छा देखो स्टोरेज का मेथड एक्सपोज करता है गेट टू गेट द वैल्यू, विल जस्ट से की डन। ये हो गया। मतलब एक काम करता हूँ और क्लियरिटी के लिए मैं वेरिएबल बना देता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू और रिटर्न वैल्यू, डन, हमारा गेट इज डन। व्हाट अबाउट पुट, अब पुट का मतलब क्या है कि आपको कुछ वैल्यू डालना है। तो अच्छा, वैल्यू आपको किस में रखना है, आपका स्टोरेज क्या है, आपका स्टोरेज कौन प्रोवाइड करता है स्टोरेज की फैसिलिटी, दिस कैशे स्टोरेज वेरिएबल राइट। सो विल डू दिस डॉट स्टोरेज डॉट पुट की एंड वैल्यू, डन। देखो अभी आपने कर भी दिया इम्प्लीमेंट, यू हैव डन द इम्प्लीमेंटेशन, आपका स्टोरेज वाला काम हो गया है। फॉर कैशे द वर्क इज डन। हमने इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया कैशे स्टोरेज का अभी, इन मेमोरी वाला, वी विल गिव इट लेटर, बट वी हैव इम्प्लीमेंटेड दैट एंड दिस वर्क्स। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट दैट वी वांट टू डू, इफ यू रिमेंबर वी हैड टू डू द इविक्शन थिंग। अभी अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ पुट कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, यहाँ पे कैपेसिटी का तो कुछ कंसेप्ट अभी तक आया ही नहीं, करेक्ट, जो कि होना चाहिए था। जहाँ पे मतलब बेसिकली इविक्शन करने का कि यहाँ कैपेसिटी फुल हो गई तो अब इविक्ट करो। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि ये जो LRU स्ट्रेटेजी वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग हार्ड कोड नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि बाद में कोई फ्यूचर में भी कोई नया अगर आ जाए, वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट। तो इसके लिए ये जो इविक्शन के लिए भी ना एक स्ट्रेटेजी लगेगी राइट, इसका भी हम लोग इंटरफेस बना लेते हैं। अब देखना कैसे बनाऊंगा मैं इंटरफेस उसका, इंटरफेस कैशे इविक्शन स्ट्रेटेजी, खत्म। अब इसके अंदर क्या मेथड्स होंगे, इसके अंदर सिंपल एक मेथड होगा इविक्ट की, कि भाई अब आप की रिमूव कर दो, कैसे रिमूव कर दो, कौन सी की रिमूव कर दो, ये नहीं, वो पॉलिसी बताएगी कि कौन सा की रिमूव होगा, ये खुद इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है। और इसके अलावा एक और क्या मेथड इसको एक्सपोज करना पड़ेगा। सो इफ यू रिमेंबर, जब हम लोगों ने अभी हम एक्सेस ऑर्डर जैसा कुछ कर रहे थे राइट, कि अभी ए यूज हो गया, अब बी यूज हो गया। सो हाउ विल, अब देखो हाउ विल दिस डिटेल go into how will this know right, this interface और this implementation will know कि हाँ अब ये यूज हो गया है या बी की यूज हो गई है। तो वी हैव टू एक्सपोज एन मेथड जिससे हम बता सकें इसको कि हाँ ये वाला पर्टिकुलर की हैज बीन यूज्ड। सो फॉर दैट व्हाट विल डू इज विल क्रिएट अ मेथड, विल से नोटिफाई, या तो नोटिफाई बोलते हैं या उससे बेटर रहता है नाम होगा की एक्सेस्ड, और यहाँ पे भेज दो कौन सा की आपने एक्सेस किया। तो जैसे हमने ए एक्सेस किया तो हम क्या कर देंगे, ए एक्सेस करने के फॉर एग्जांपल ये की आपने यहाँ पे एक्सेस किया राइट, गेट के लिए या पुट के लिए। आफ्टर दिस व्हाट विल डू, विल यूज द की एक्सेस्ड मेथड एंड विल सेंड द डिटेल टू इट कि हाँ भाई ये हमने की एक्सेस कर लिया। अब इसको हम लोग डालते हैं अपने कोड पे, ठीक है। कैसे
क्या सेकंड डिपेंडेंसी क्या थी इसकी, इविक्शन की, राइट। इसके लिए अब हम क्या कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन एलआरयू डालेंगे, नहीं, हम लोग क्या डालेंगे, एक इंटरफेस डालेंगे विच इज प्राइवेट कैशे इविक्शन पॉलिसी, कैशे इविक्शन स्ट्रेटेजी, इविक्शन स्ट्रेटेजी। बस अब इसको हमको यूज करना है। सबसे पहले तो ये दो डिपेंडेंसीज को इनिशलाइज भी करना पड़ेगा, है ना। कैसे करेंगे, विल जस्ट डू दिस, पब्लिक एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ये हम लोगों ने डिपेंडेंसी इंजेक्शन में पढ़ा था। सो विल से स्टोरेज एंड कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है अभी। सो क्या करेंगे, दिस डॉट स्टोरेज बराबर कैशे स्टोरेज, दिस डॉट इविक्शन पॉलिसी इक्वल्स टू कैशे इविक्शन पॉलिसी, वट एवर डिपेंडेंसी जो भी आएगी कैशे को मिलेगी बाहर से। इससे क्या है, वो लूजली कपल्ड हो गया, राइट। सो इफ यू टुमारो इफ यू सेंड सम अदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ cache eviction strategy, that implementation will be stored here and that will be basically used right throughout. Okay, now so we have got eviction strategy also and the storage also, हमने storage already use भी कर लिया है। now let's update the code to accommodate eviction। तो हमको eviction कब करना है, आप बताओ। सबसे पहले गेट करने में, क्या गेट करने में कभी इविक्शन होगा, पहला क्वेश्चन। इविक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि गेट करने में आप कोई नया चीज़ नहीं डाल रहे हो। बट हाँ, गेट करने में एक चीज़ ज़रूर होती है। सो गेट करने में क्या होता है कि एक्सेस ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपने बी की कोई यूज़ करी है तो बी को आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रंट में डालना पड़ेगा, ताकि पता चले, राइट, उसको कि सबसे रिसेंटली यूज़ क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर बी यूज़ हुआ है। तो राइट नाउ वी आर नॉट सेंडिंग दैट डिटेल राइट टू दिस इविक्शन पॉलिसी। सो अब हम वो वाला काम कर लेते हैं। कैसे, हमने ये गेट किया, एक काम कर लेते हैं, हम लोग करेंगे सिर्फ क्या करेंगे, दिस डॉट इविक्शन स्ट्रेटेजी डॉट की एक्सेस। कौन सा की, यही जो आ रहा है हमारे पास, आपने ये वाला की यूज किया, राइट। वी कॉल्ड अ गेट, सो वी आई एम जस्ट सेंडिंग दिस, कॉलिंग दिस की एक्सेस मेथड एंड सेंडिंग दैट डिटेल टू इविक्शन स्ट्रेटेजी कि हाँ भाई हमने ये वाला की यूज करा है, इसका तुम अब ऑर्डर मेंटेन कर लो कि हाँ मैंने इसको अभी जस्ट यूज किया है। कूल। नाउ सिमिलरली फॉर पुट, अब पुट में थोड़ा सा here the मामला इज अ बिट डिफरेंट, राइट, इज द सिचुएशन इज डिफरेंट। कैसे, सो पुट में आपको एक्सेस किया है वो तो करना है, बट द अदर थिंग इज एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पुट करने के से पहले हमको चेक करना चाहिए कि कैशे फुल तो नहीं हो गया। अगर कैशे फुल हो गया है तो हमको यूजिंग दिस इविक्शन स्ट्रेटेजी वी हैव टू रिमूव वन की ऑल्सो, करेक्ट। क्योंकि हम अगर साइज, अगर कैपेसिटी उसकी 3 है, 3 एलिमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं उसके अंदर, सो फोर्थ एलिमेंट अकोमोडेट करने के लिए वी विल हैव टू फिक्स दैट। सो कैसे कर सकते हैं वो, सिंपल फॉलो करना, बहुत ही नॉर्मल लॉजिक लिखूंगा मैं। लेट मी रिमूव दिस फॉर नाउ। हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि भाई स्टोरेज फुल है क्या। कैसे पता करेंगे, देखते हैं। इफ दिस डॉट स्टोरेज डॉट, देखना एक मेथड ऑलरेडी है इस फुल। अगर स्टोरेज ऑलरेडी फुल है, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, और आप जो अभी की डाल रहे हो वो एग्जिस्टिंग तो नहीं। जैसे अगर मान लो आप एग्जिस्टिंग की फिर से डाल रहे हो, तब आपको कुछ इवेट करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि मतलब वो रिप्लेस हो जाएगी, आपको उसको नया बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग एक चेक और क्या करेंगे, हम ये चेक कर लेंगे कि स्टोरेज डॉट दिस डॉट स्टोरेज डॉट गेट की इज इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या है कि स्टोरेज फुल हो और जो अभी जो की है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ना हो। अगर ऐसा है तो ये सिनेरियो क्या बोलता है कि हाँ अब तो कुछ नया की आने वाला है, तो और साइज भी फुल है, सो वी हैव टू रिमूव सम एग्जिस्टिंग कीज, करेक्ट। तो अब वो कैसे रिमूव करेंगे, तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमको अब बात करनी है विद इविक्शन स्ट्रेटेजी टू इविक्ट की। कैसे लिखेंगे, स्ट्रिंग की टू बी रिमूव्ड, मैं ये लिखता हूँ नाम। और कैसे पता करेंगे, वो हमको नहीं पता करना है, वो इविक्शन स्ट्रेटेजी का रोल है, इस कैशे का रोल नहीं है। तो हम सीधे मेथड कॉल करेंगे, इविक्शन स्ट्रेटेजी डॉट इविक्ट की, खत्म। ये मेथड से क्या होगा, वो फाइंड कर लेगा इविक्शन पॉलिसी और स्ट्रेटेजी की व्हाट इज द की दैट इज सपोज टू बी रिमूव्ड फॉर एलआरयू। हाउ इट विल थिंक इज व्हाट वाज द लास्ट और द मोस्ट ओल्डेस्ट की दैट वाज यूज्ड, वो हमारे पास की आ गई, ठीक है। अब ये जो की आ गई, इसको क्या करना पड़ेगा बताओ। अब आपको कैशे से जो कि फुल हो चुका है उससे ये वाली की रिमूव करनी पड़ेगी। तो क्या हमारे पास रिमूव का कोई मेथड है स्टोरेज के अंदर, यस वी हैव। क्या है, दिस डॉट स्टोरेज डॉट रिमूव की, विल जस्ट पास दिस की, डन। हमने क्या कर दिया, अभी तक हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सी की रिमूव होगी और हमने रिमूव कर भी दिया। रिमूव करने के बाद बताओ अब क्या बचा, वी हैव टू पुट द न्यू की दैट वी वांट टू ऐड। तो वो कैसे ऐड करेंगे, सिंपल है, दिस डॉट स्टोरेज डॉट पुट, भाई की वैल्यू डाल दो,
अच्छा एक काम और क्या मिसिंग है बताओ, बिकॉज नाउ यू हैव यूज दिस न्यू की, अब आपको कैशे स्ट्रेटेजी वाले को भी तो भेजना पड़ेगा राइट, कि वी हैव यूज दिस की, सो विल से दिस डॉट इविक्शन स्ट्रेटेजी डॉट की एक्सिस्ट, डन, ये कोड हो गया बस। सो हमने गेट भी कर लिया, पुट भी कर लिया, दिस वर्क्स, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कैशे इज डन, ऑनेस्टली दिस इज डन। अब ये कैशे में इतना ही कोड रहेगा हमेशा। अब यहाँ पे पेंडिंग क्या है, पेंडिंग है, आप बताओ क्या है, पेंडिंग है हमारे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टोरेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इविक्शन पॉलिसी, बट यू विल रियलाइज ना मैंने एल इम्प्लीमेंट किया, ना मैंने कैसे स्टोर करना है वो इम्प्लीमेंट किया, बट वी हैव रिटन ऑल द लॉजिक, यही एक्सपेक्टेशन है। सो आई डोंट नो हाउ things are being implemented, yet I am able to create a structure and I am able to write the client code. So this is the skill that we are trying to learn. आप ये लिखोगे, ये बता दोगे, even with this thing, with this clarity, they will you will be able to clear the interview and they will like it a lot, because generally this is what happens in production also. At times you don't know what is the implementation detail initially, but you are able to create structures, you are able to create these interfaces कि हाँ मेरे को कोड में तो ये मेथड्स चाहिए, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा क्या होगा वो हम लोग फिगर आउट करेंगे, बट ये इम्प्लीमेंटेशन यूज होगा ऐसे होगा। वी आर डन विद दिस। अब हमको बस क्या करना है, वी हैव टू डू द इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले हम लोग इम्प्लीमेंट किसको करेंगे, हम हमारा कैशे स्टोरेज को, एंड व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट इन द क्वेश्चन, वी हैव टू क्रिएट एन इन मेमोरी कैशे, तो हम इन मेमोरी का एक इम्प्लीमेंटेशन बनाते हैं। सी द कोड, क्लास इन मेमोरी, इन मेमोरी क्या कैशे नहीं, इन मेमोरी कैशे स्टोरेज, कैशे स्टोरेज किसको इंप्लीमेंट करेगा, इट विल इंप्लीमेंट कैशे स्टोरेज, ठीक है। अब क्योंकि ये इंटरफेस है, इट विल हैव टू इंप्लीमेंट ऑल दिस मेथड्स, है ना, और ये हम लोग यहाँ पर जाते हैं एंड विल जस्ट क्लिक ऑन इंप्लीमेंट ऑल, सो ये 4 मेथड्स हमारे पास आ गए। सो नाउ वी हैव टू एक्चुअली राइट एंड इम्प्लीमेंट, राइट, ये तो सिर्फ अभी नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन है अभी। तो व्हाट डिड वी डिसाइडेड, इन मेमोरी में हम लोग क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, मैप यूज कर सकते हैं। एक मैप बना लेते हैं सबसे पहले, आउटसाइड ऑल द मेथड्स विल से प्राइवेट मैप स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम स्ट्रिंग यूज करेंगे, एंड ठीक है, और इसका नाम मैप ही रखते हैं। और व्हाट वाज द अदर थिंग, स्टोरेज के पास एक डिटेल और क्या होना चाहिए, कैपेसिटी भी आनी चाहिए कि भाई कितनी कैपेसिटी है स्टोरेज की, ताकि हम बता पाए राइट कि फुल हुआ कि नहीं हुआ। तो एक वेरिएबल होगा प्राइवेट फाइनल इंट कैपेसिटी, ठीक है। अरे यार फाइनल नहीं करते, नॉर्मल करते हैं, और लेट्स क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर फॉर दिस, पब्लिक इन मेमोरी कैशे, इसके अंदर अब मिलेगा उसको कैपेसिटी, हम कैपेसिटी असाइन कर देंगे और कैशे मैप बना देंगे, ठीक है। और ये इस मैप का हमने इम्प्लीमेंटेशन दे दिया हैश मैप का, अभी कैपेसिटी इनिशियलाइज नहीं करना है, कूल, ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहले बताओ गेट कैसे करोगे, सिंपल है भाई, क्या करना है, दिस डॉट मैप, भाई मैप के अंदर से गेट कर लो, गेट का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। पुट कितना बहुत ज़्यादा ईजी है, क्या करना है, दिस डॉट मैप में जाके सीधे पुट करना है, सो ईजी। व्हाट इज द लास्ट थिंग, रिमूव, अगेन की बहुत ईजी है, क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट मैप डॉट, आई थिंक मैप के अंदर मेथड होता है रिमूव की का, रिमूव, यहाँ डाल दो की, इजी। व्हाट इज द लास्ट पुट, इज फुल। अच्छा अब बताओ मैप फुल है कि नहीं, मैप फुल है कि नहीं पता करने का सिंपल तरीका क्या है कि जो भी कैपेसिटी हमारे पास है, मैप का साइज और कैपेसिटी को चेक कर लो। सो कैसे करेंगे हम लोग, विल से रिटर्न दिस डॉट मैप इक्वल्स दिस डॉट कैपेसिटी, दिस डॉट मैप डॉट साइज इक्वल्स कैपेसिटी, डन। हमारा इन मेमोरी का जो स्टोरेज वाला जो पार्ट है इट इज डन। सी कितना ज़्यादा इजी था, बट इनिशियली हमने वी डिड नॉट वरीड अबाउट इट, वी वर्कड विद इंटरफेसेस, हमारा कोड ऑलरेडी हो चुका है विद इंटरफेस, हम कोई भी चेंज नहीं करने वाले। मतलब आप कोई भी नया इम्प्लीमेंटेशन लाओ, इवन इफ यू क्रिएट अ डीबी इम्प्लीमेंटेशन और अ डायनेमो डीबी इम्प्लीमेंटेशन और फाइल बेस्ड कैशे, हमारा ये जो मेन कोड है, दिस कैशे कोड विल नॉट चेंज, वी हैव रिटन इट इन अ वे, इट इज लूजली कपल्ड, ठीक है। सो वी हैव क्रिएट द इन मेमोरी कैशे स्टोरेज, ये काम तो हमारा हो गया। नाउ द सेकेंड पार्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजी। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसको समझते हैं। ओके, I'll create, see I am creating all these classes in a single file,
so that it is easy for you. But ideally we would have all these things interfaces in a separate files. Okay, that, but this is just for explaining, and it's easier on the eyes, right, if all the classes are there in a single file. So I'll create the LRU strategy. So class LRU eviction strategy, ये किसको इम्प्लीमेंट करेगी? एक इविक्शन पॉलिसी को, हमारे पास जो इंटरफेस था कैशे इविक्शन स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्या क्या मेथड्स इंप्लीमेंट करना पड़ेगा? इविक्ट की मेथड एक बार देख लेते हैं क्या क्या मेथड्स हैं। लेट्स गो टू सी, इविक्ट की करना है और की एक्सेस करना है। ठीक है, I'll come here and I'll implement the methods. ओके, सबसे पहले क्या है? evict की। हाँ, तो मैं व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग हाउ LRU वाज वर्किंग, वी रियलाइज कि हमको ना कुछ एक लिस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी दैट स्टोर्स द एक्सेस ऑर्डर्स, राइट? कि अभी ये यूज़ हो गया है, राइट, और सबसे रिसेंटली यूज़ हुआ है, जो सबसे रिसेंटली यूज़ होगा वो सबसे एंड में रहेगा, और जो सबसे पहले यूज़ हुआ है वो हम लोग को स्टार्टिंग में डाल देंगे। एंड व्हेन एवर वी हैव टू इविक्ट अ की, विल जस्ट रिमूव द फर्स्ट की, राइट, विच इज़ एट द स्टार्टिंग। सो विच डेटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड दिस फैसिलिटी? तो ये फैसिलिटी ना हमको क्यू प्रोवाइड करता है या लिंक लिस्ट प्रोवाइड करता है। लिंक लिस्ट इन जावा, लिंक लिस्ट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू। तो हम लोग लिंक लिस्ट यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। आई विल इस पे मतलब इसको और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन पे, बट राइट नाउ विल जस्ट इम्प्लीमेंट इट। अभी वो वाला ऑप्टिमाइजेशन इस पे नहीं देखते, ठीक है? सो आई शो यू वन मोर थिंग, आई शो यू हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस। क्या डेटा से लगा के कैसे इन दोनों का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देंगे। फॉर दैट लेट्स गो टू द वाइट बोर्ड फॉर 2 minutes, ओके? I don't want to write code and for without making you understand how why I am writing it that way. So एक बार whiteboard में देख लेते हैं. So we have to implement LRU, right? Implement. I'm not writing code. I am explaining the data structure. So if you remember, हम लोगों ने कैसा क्या हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग इस टाइप से कुछ होगा कि अगर A यूज हुआ तो A यहाँ पे है, उसको लेट से B यूज होता है तो B को हमको एंड में डालना पड़ेगा। वी हैव टू ऐड इट टू द टेल। आफ्टर दैट इफ C इज बीइंग यूज्ड विल ऐड C एट द टेल। आफ्टर दैट इफ D इज यूज्ड विल ऐड D एट द टेल। एंड and so this is the thing, right? So if you are using any new key, you will append that to the end of the list. But let's say if you are using something which is already there in the list, for example, if you now used B, if you have used B and we realize okay, B is already there, so what we'll have to do, we have to remove this B from the list and then place it here. So how it will look now? It will look like this: A, C, D, B. You get my point? Now after this, let's say I do an eviction. Imagine यहाँ पे कैशे का साइज फुल हो गया है. Now we are asked, this cache eviction strategy class is asked कि okay, evict a key. So which key will you evict? Will you evict B or A? You will evict A. Why? Because this is the oldest unused key, right? Or oldest used key, right? So we will remove A. Then how will our access order look now? It will look like this, right? And the new key would be added here. So we understand, right, कि how we need to represent, and we will try to find what is the data structure that will support us. तो इसका जो data structure है वो linked list है basically. So linked list के अंदर क्या रहता है? It has methods to add at the tail, add at the front. We have these methods. एक queue का implementation में, right? So we'll use this. Cool, हम लोग इससे यूज कर लेते हैं. एंड हाउ विल यू नो इफ अ पर्टिकुलर की इज प्रेजेंट, ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस लिस्ट? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? वी कैन मेंटेन अ सेट, वी कैन मेंटेन अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स. इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये A B C D ये सब स्टोर होगा. एंड इफ वी सी बिफोर एडिंग अ न्यू की, व्हाट विल डू इज विल सी वेदर इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन दिस सेट और नॉट. If it is already in the set, we'll say okay, let's remove it from the list and then add it to the tail. So this is how we will implement. Let's move back to the ID. Okay, so we realize कि हमको यहाँ पे we have to use cache. So for cache we'll use I think I meant we wanted to use not cache, I wanted to use the queue, and the implementation for the queue will be linked list. So let's create a queue that supports what type of queue? We need a queue that supports addition and removal from both the ends.
that is the main thing. So that implementation is called deck. एक deck होता है in 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 Java that supports addition and removal from both the sides. So we'll call it access order list. I'll name it like this. And what is the other thing? We wanted to create a set, right, so that we know that do we have some element in the list or not. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक simple, let's create a set. We'll create a set of string and we'll say existing keys. We'll call it this. इसका constructor बना देते हैं fast. No, we don't need capacity or anything. We'll not use array deck also. We'll use linked list implementation, which we know, and for the set we'll use hash set. Cool, this is done. Now सबसे पहले before doing key like evict key, let's first write key accessed. तो हमको key access करने में क्या करना पड़ता है? हमको कोई भी जो key आया है, we have to add it to the end of the list. But do we always have to do it? Yeah, we have to do it, but in case if that key is already in the list, first we have to remove it and then add it to the end. So let's check that. What we'll do, we'll check whether the key already exists. So I'd hate this autocomplete. So if this dot existing keys dot contains key. So if the key already exists, what we need to do, we will remove it from the list first. How we will remove it? We'll say this dot access order list dot remove and we'll pass the key. Okay, what next? We'll add it to the end. So that part we need to do even if the key exists or not, right? So we'll add that outside. So we'll say this dot access order list. Okay, now you tell me, where should I add? Should I add the newest key in the initial side at the front end or the rear end? We will add it at the rear end based on how we practiced in the whiteboard, right? So I will not use add first. I will use add last. Sorry, add last. I'll say add key. Now what else? What we need to do is, now we have added this key list and we are using the existing keys to check whether a key already exists or not. So that means we have to also add this key to the existing key, so that next time if the same key is accessed in some time, we are able to remove it and we understand that yeah, it is already existing. So let's also add to the list. Very normal logic. Done. So key access logic is done. Now the second logic is evict key, the easiest implementation. How do we evict key? Just remove the key that is present at the first. Simple. How do we do that? We'll say, let me first get that key, right? We'll say key to be removed, list. Where is the list? List is here. Access order list, this dot access order list dot remove the first element. Okay, I hope remove first returns the key also. Let's just see, retrieves and removes the first elements. Yeah, it retrieves also. So we got this, and we will return this. But before returning, returning the key, let's also remove it from the existing list. So we removed from the access list. Now we want to remove it from the existing list also. That's set. So let's do that also. This dot existing keys dot remove the key to be removed. Done. So we have created the implementation of LRU also. So easy, nothing difficult. Tomorrow if you have to implement one more implementation, just create one more class that implements cache eviction policy. Now let's just run this cache, but for that we have to pass the in-memory implementation and the eviction strategy. Right now these are using interfaces. We haven't passed them the actual concrete implementation, so let's do that. I hope you have understand this. Don't worry, I will be also adding the GitHub URL link in the description. You can check that out and you can learn more. So class, I'll say cache demo. Let's add a main method. So what do you need in the cache? So let's do one thing. Firstly, let's define a capacity. Let's say capacity is 3. Then in order to create this cache, right, we would need, if you see to the constructor, it needs a cache storage and an eviction strategy object.
let's create those first. So we'll create the storage first. We'll say cache storage. I'll call it in memory storage. In memory storage equals new in memory storage. What does it take? It takes capacity. Let's pass the capacity variable. So we have done that. Now what is the second object that we need? We need an eviction policy. So cache eviction strategy. Which strategy is it? It is LRU eviction strategy. Okay, how do we create? We'll just call it using new LRU eviction strategy. And after that let's add let's create the cache object. So cache equals new cache, and it requires two things: the storage and the eviction policy. Will pass the in memory for storage and LRU for eviction. So cache is created. Now let's add some keys and test. So I'll say cache dot put. I'll use the same example. One against one. I'll put apple. Cache dot put. Now I'll pass 2 and I'll say let me just use this. So one important thing, the capacity was 3. So after we added 1, we would if you call a get method, we will get the apple. Then for 2 we'll get banana, for 3 cherry. Now once we add 4, the capacity was 3. So that means it will have to remove one of the key, right? And if you see if you apply LRU, which key would be removed? What was the most oldest key that was used? It was this first one, right? So ideally if I call cache.get1, it should not return me apple. That is the main thing, right? So I'll say cache.get1 should be none. Okay, let's see what it does. And one more thing, if I try to get the fourth key, we should get that cache.get 4. We should get this date. Okay, let's execute and see. See, nice. We received a null because the key does not exist. It got removed because of LRU. And the other thing is, when I try to get 4, we got the date. So we are done. We have completed the LRU implementation, and we have written a code in a way which is easily extensible. Like, you can create any new implementation. If you want to use file, if you want to use DB, you just create the appropriate cache storage implementation for that. If you want to use some new strategy like FIFO, LIFO, create that strategy and pass it here, right? Like I did here when we are initializing the cache, and it will work. So this is easily extensible. There is no hard coding, there is no dependency. In fact, if you carefully see, cache does not even know what storage it is using, because it is using the interfaces, correct? Let's just so if you implement this, I am damn sure that you have already cleared the round, and the interface will be extremely expressed. There are few improvements, like using generics, right? Because right now we are doing key and key, but for an interview setting, this will work. And the other thing is scope for concurrency management, right? Because right now we are not this is not thread safe. So these are the 2 improvements that we need to do. We will do that in the next video, but this itself alone will help you crack this cache LLD. I hope you have liked it. Please subscribe and like the video, and what is the next use case that you want me to implement? Please add it in the comments. Thank you.